I have a flow chart that is given in Novak that I'm going to follow. Now when I go and follow this chart in Novak, यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है. सबसे पहले मैं देखूंगा पेशेंट को हर्सुटिज्म है. मैंने फेरिमन गैल्वे स्कोरिंग किया. फेरिमन गैल्वे स्कोरिंग कैन बी इधर लेस देन 8 और मोर देन 8, मतलब ही 9 एंड मोर. अगर लेस देन 8 आया, सो ऑब्वियसली आई नो कि ज्यादा कोई डरने की बात नहीं है हर्सुटिज्म की. आई विल जस्ट गिव हर अ ट्रायल ऑफ ओसी पिल्स, कॉस्मेटिक, ये सब. नहीं हुआ उससे ठीक, देन आई विल डू एन इवेल्युएशन फॉर हर एज वेल. बट फॉर ऑल पेशेंट्स जिनका स्कोर 9 या ज्यादा या फिर 8 से ज्यादा बोलो तुम लोग, वैसे भी याद रख सकते हो, आता है. What are the conditions that I have to be testing for? PCOS, obviously. Adult onset adrenal hyperplasia. We often keep on hearing CH, that is congenital adrenal hyperplasia. But congenital क्यों? Adult बन के भी तो हो सकता है. So adult onset adrenal hyperplasia and ovarian और adrenocortical tumor यानी adrenal tumor. So सबसे ज्यादा ग्रेव जो है वो है अपना एडल्ट ऑनसेट एड्रिनल हाइपरप्लेजिया एंड कोई ट्यूमर है या नहीं है. PCOS is a relatively benign condition in comparison to these. So first I have to rule out whatever is more bad, whatever is more grave. So to test for adrenal hyperplasia we have always read, अपने पास एक सिंपल टेस्ट है और वो सिंपल टेस्ट का नाम आता है 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट. ना 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन, इफ यू गो बैक एंड सी योर स्टेरॉइडोजेनेसिस का चार्ट, वो स्टेरॉइड्स बनते हैं ना जिसमें ईस्ट्रोजन भी बनता है, टेस्टोस्टेरोन भी बनता है. एट द एंड ऑफ इट यू इवन गेट मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एवरीथिंग. You go and see 17 hydroxyprogesterone, you would remember you have studied in your undergraduation days preparing for NEET PG as well that 17 hydroxyprogesterone is an important marker of any form of adrenal hyperplasia. So that is one of the tests that I'm going to be doing. Apart from that, bioavailable testosterone. Bioavailable मतलब total as well as free testosterone करेंगे. And if you have the availability, then also do sex human binding globulin. But not that important. SHBG is basically something that binds to your testosterone and takes it away from your body. So when it binds to testosterone and takes it away from the body, the effect of testosterone in your body reduces. So that is SHBG. So sex hormone binding globulin उसको बोलते हैं. So the three main tests that I'm going to be doing happens to be 17 hydroxyprogesterone, testosterone that is total and free testosterone. Now सबसे ग्रेव मेरा पहला है AOAH, adult onset adrenal hyperplasia. So अगर मैंने वो टेस्ट किया और 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन का वैल्यू आता है 300 नैनोग्राम पर डीएल से ज्यादा, देन आई विल कंफर्म इट बाय डूइंग ACTH स्टिमुलेशन. ACTH का स्टिमुलेशन देते ही अगर वैल्यू मेरा 1000 से ऊपर जाता है लेकिन 10,000 से कम रहता है, देन द डायग्नोसिस इज एडल्ट ऑनसेट एड्रिनल हाइपोप्लेजिया. सो 1000 से लेके 10,000 तक का वैल्यू अगर आता है, दैट इज एडल्ट ऑनसेट adrenal hyperplasia. So basically इसका ये कहना है that the tumor or the not the tumor, the adrenal hyperplasia is so sensitive that even small amounts of ACTH given बाहर से are going to stimulate large amounts of 17 hydroxyprogesterone secretion from them. And whenever 17 hydroxyprogesterone is increasing, remember the pathway gets tilted towards excessive production of testosterone. मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स बंद हो जाते हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड बंद होते हैं, ईस्ट्रोजन बंद होता है. जो बनता है वो है पूरी की पूरी तरह से टेस्टोस्टेरॉन, कॉर्टिकोस्टेरॉन, सब जो तुम्हारे एंड्रोस्टीन डायन है, ऑल दोज थिंग्स दैट लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ टेस्टोस्टेरॉन, वो पाथवे पे डिविएट हो जाता है. सो दैट्स अ मार्कर कि यहाँ पे स्टेप अटका पड़ा है और ये पूरा टेस्टोस्टेरॉन अभी बनने वाला है. What if the levels are more than even 10,000? If the levels are more than 10,000, then you would rather suspect congenital adrenal hyperplasia. मतलब बचपन से उसको ऐसे ही रहा है. These patients are going to present immediately in the first few months of life. ठीक है. मैंने 17 अल्फा अल्फा अपना हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरॉन का टेस्ट किया और वो आया नॉर्मल. देन आई वेंट अहेड एंड चेक्ड द नेक्स्ट टेस्ट. नेक्स्ट टेस्ट में आया मेरा टेस्टोस्टेरोन लेवल मोर देन 200, टोटल टेस्टोस्टेरोन मोर देन 200 एंड फ्री टेस्टोस्टेरोन मोर देन 6.85. Now these are the parameters that are already given. You can just keep this chart in front of you. You do not need to remember all this.
सो अगर ये इतना ज्यादा आता है तो मैं कंफर्म करता हूं कि ये ट्यूमर है, वो टेस्टोस्टेरोन का तो ट्यूमर है, मतलब बॉडी में कोई तो एंड्रोजन का ट्यूमर है, बट आई स्टिल नीड टू कंफर्म वेदर इट इज फ्रॉम द एड्रिनल और इज इट फ्रॉम माय ओवरीज। तो उसके लिए मैं कुछ एड्रिनल टेस्ट भी करता हूं, दैट इज 11 डीऑक्सी कॉर्टिसोल लेवल्स में पहले चेक करता हूं। आई ऑल्सो चेक फॉर माई यूरिनरी कॉर्टिसोल टू चेक वेदर कुछ कुशिंग्स का तो चांस नहीं है, एंड डीएचईए। बेसिकली मैं एड्रिनल के भी चेक कर रहा हूँ। First, I had checked total testosterone and free testosterone that are classically the ovarian androgens. Now I'm also testing for the adrenal androgens. And depending on what increase, किसका increase आता है, I would allocate it the diagnosis of ovarian or adrenal androgen secreting tumor. Very simple. कौन सा टेस्ट पॉजिटिव आता है? अगर ये टेस्ट पॉजिटिव आए मेरे सब, तो मोस्टली मेरा ओवेरियन ट्यूमर है, और अगर ये सब पॉजिटिव आए तो मेरा एड्रिनल ट्यूमर है। ओके, रेज्ड आया, बट 200 के ऊपर नहीं था, मॉडरेटली रेज था, डबल था नॉर्मल के। अगर डबल था नॉर्मल के तो आई डोंट हैव टू वरी उतना ज्यादा, बिकॉज इट इज समथिंग that is PCOS or something related to PCOS. Heran, that is hyperandrogenism, insulin resistance, acanthosis nigricans, metabolic syndrome, hypertrichosis, thickened ovaries. All of these things that I'm going to be talking in PCOS, but basically not something that is too grave. Okay, I can manage it. And lastly, सब कुछ normal आता है तो फिर से PCOS. PCOS is often notoriously known to have all normal blood investigations, or idiopathic hirsutism, wherein my body is just genetically too sensitive to androgens, and मेरे को normal amount of androgens में भी excessive hair growth हो रहा है, so it is idiopathic के साइड चला जाता है। बट ये चार्ट का बेसिक यही था कि तुम लोग को जब भी 9 से ऊपर स्कोर आता है, सबसे पहले यू हैव टू रूल आउट एड्रिनल हाइपोप्लेजिया, सेकेंडली यू हैव टू रूल आउट एनी फॉर्म ऑफ एड्रिनल और ओवेरियन ट्यूमर। उसके लिए कौन से टेस्ट करोगे? 17 हाइड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन करोगे, एंड यू विल उससे अपना एड्रेनल हाइपरप्लेजिया डिपेंडिंग ऑन कितना आता है वैल्यू वो डिटरमाइन होगा। ऑन दी अदर हैंड, यू आर ऑल्सो डूइंग टेस्ट टू डिटरमाइन ओवेरियन या अपना एड्रेनल ट्यूमर तो नहीं है, बट टेस्टिंग टोटल टेस्टोस्टेरॉन, फ्री टेस्टोस्टेरॉन, डीऑक्सी डीएचईए लेवल्स एंड यूरिनरी कॉर्टिसोल लेवल्स। इससे क्लियर होगा कौन सा ट्यूमर है, और अगर सब नॉर्मल है या फिर स्लाइटली रेज्ड है, पीसीओएस है, आई कैन मेक अ बिग डिफरेंस बाय वेरी इजी मैन्यूवर्स। क्यों? क्योंकि बाकी अगर एड्रिनल हाइपोप्लेजिया आता है, ट्यूमर्स आता है, तो मुझे रिसेक्ट करना पड़ेगा। सर्जरी ऑफ द एड्रिनल और द ओवरीज इज नॉट इजी, इट कैन बी अ वेरी ब्लडी अफेयर, प्लस उसको ऑन्कोलॉजिस्ट ने करना पड़ेगा। इट विल रिक्वायर अ लार्ज स्केल सर्जरी या सुप्रा मेजर सर्जरी, बट फॉर ऑल अदर डायग्नोसिस, पीसीओएस, हैरान, मेडिसिन पे पूरा मैनेज हो जाएगा। तो दिस इज द चार्ट दैट यू हैव टू ब्लाइंडली रिमेंबर। वैल्यूज मत याद रखो, ठीक है, बस वो एक एड्रिनल हाइपोप्लेजिया का याद रखो।